Hello viewers, this is VV Kulkarni from PMC School JNV Dharashiv. Today we will see the competency based question on the topic a pair of linear equation in two variables, class 10th mathematics. Good morning children. Good morning, sir. Very good morning children. Good morning, sir. Today we will see what kind of competency was asked in the topic linear equation in two variable last year. Last year's question paper, I have selected this question. The question is like this. A school is organizing a grand cultural event to show the talent of its students. A school want to organize a cultural program just as we conducted in the month of April. हमने भी कंडक्ट किया था ना, वैसे स्कूल को ऑर्गेनाइज करना है तो वो क्या कर रही है टू accommodate the guests. The school plans to rent chairs and tables from a local supplier. Of course, we also do it. We also purchase. हम लोग भी क्या करते हैं? We bring it on rent. तो रेंट पे हम लोग टेबल हमको चाहिए, रेंट पे हमको कुर्सियां चाहिए, रेंट पे हमको टेंट चाहिए, रेंट पे हमको माइक सिस्टम चाहिए. पर हो सकता है स्कूल के अंदर केवल क्या चाहिए? We want only tables and chairs. तो वैसा है. Finds that rent for each chair is 50. This is very important. Rent for each chair is 50 and for each table is 200. This is the main thing. The school spends rupees 30,000 for renting the chairs and tables. Okay. School spends how much? 30,000 for renting the chairs. Also find the total number of chairs and tables rented are 300. So let us see what is the question asked to us. Okay. तो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट पूछा है हमको वो ये है. क्वेश्चन आपको पूछा है देखिए यहाँ पर राइट डाउन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन को बताता हुआ एक लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है. तो क्या आप बता सकते हो क्या हो सकता है लीनियर इक्वेशन? नंबर ऑफ चेयर्स, लेट अस से अभी हम ऐसे कहेंगे कि लेट अस से द नंबर ऑफ चेयर्स आर x एंड नंबर ऑफ टेबल्स आर y. तो लिखिए आप लेट अस से क्या लिखोगे आप? लेट अस अज्यूम दैट नंबर ऑफ चेयर्स आर x. Chairs are x and tables are how much? Y. Okay. Number of chairs are x and tables are y. So what is the first condition? Total number of tables and chairs कितने बच्चों? 300 है. So what will be the first equation? Very nice. X plus y is equal to 300. This is my what? First condition. This is my condition number 1, right? Number of chairs plus number of tables are how much? 300. That means x plus y is equal to 300. अब next आपको चाहिए 50 chairs and 200 tables. और total amount कितना खर्च कर रहे हैं आप? 30,000. So what do you think your equation will be? 50 chairs plus what is it? 50 chairs and 50 रुपीज. सॉरी चेयर का रेंट कितना है? 50 है. सॉरी एक चेयर का रेंट 50 है, एक टेबल का रेंट 200 है और हमारे पास कितने पैसे हैं? तो एक चेयर का रेंट 50, टेबल का रेंट 200, टोटल पैसा 30,000. ये कैसे इक्वेशन में बनेगा? या 50 इंटू एक्स, राइट? 50 इंटू एक्स प्लस हाउ मच? 200 इंटू y is equal to how much? 30,000. 30,000. Do you find something common here? What is common factor here? So if 50 is common, then 50 into bracket x plus how much? 4y is equal to how much? How much? 30,000. Right? So this 0 cancels here. 5 ones are 5. 5 6 are 30. So this is 600. Is it? This is 600. So what I write is
my second equation is x plus 4y is equal to how much? Yes, x plus 4y is equal to 600. Now the first part of the question is answered. What is the first part? First part is write down the pair of linear equations representing the given information. These are the two equations that can be framed out of the given situation. Okay. Now this was asked last year in the CBSE question paper for 4 marks under competency based question. Okay. So we have prepared the question now. We have prepared a linear equation. Remember the equation is what? X plus y is equal to 300. Note down this equation in your notebook because we have to use this equation to find the next part of the answer, the next part of the question. So first equation is what? X plus y is equal to 300. Second equation is what? X plus y is equal to x plus 4y is equal to 600. Now let us see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको नेक्स्ट पे जाएंगे. राइट डाउन. तो ये तो हो गया हमारा. ओके. फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल परचेज बाय द स्कूल. अब हमको क्या करना है? नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स हमको प्रिपेयर करना है. इक्वेशन थोड़ा बताइए आपने जो नोट किया था. व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन? x plus y is equal to 300 और x plus 4y is equal to 600. ये हमारा इक्वेशन था. राइट. तो अब इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए ये प्लस साइन है तो ये माइनस होगा. ये प्लस है तो माइनस होगा. ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस होगा. तो प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो गया? तो 1y माइनस 4y कितना होगा? माइनस 3y. और ये कितना होगा? माइनस 300. ओके. तो y इज इक्वल टू माइनस 300 डिवाइडेड बाय minus 3 and that is equal to how much? That is equal to how much? 100. अब इस 100 को किसी एक इक्वेशन में डाल दो. Simplest equation is x plus y is equal to 300 है. What is it? y की वैल्यू कितनी है? 100 है. तो कितना होगा? तो x is equal to how much? 300 minus 100 that is equal to how much? So what is this 200 and what is this 100? What is 200? Number of chairs. So number of chairs कितने हो गए बच्चों? Number of chairs कितने हो गए? Number of chairs is equal to 200 और number of tables कितने हो गए? 100. तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. इसको वर्ड प्रॉब्लम में भी पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए. एक वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गारंटी आता है या तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में गारंटी आता है. और अगर एक तरफ वर्ड प्रॉब्लम आ गए तो दूसरी तरफ अक्सर क्या होता है? चांसेस आर दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इसको पूछे. तो ये हो गया कितने? नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स. राइट. चेयर्स 200, टेबल्स कितने? 100 और दोनों मिलाकर कितने हो गए? 300 हो गए. बराबर है. तो राइट. तो ये हो गया find the number of chairs and table rented by the school. Right. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? देखिए आप और नहीं. देखिए ये 2 मार्क के लिए पूछा है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. आई टोल्ड यू दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देयर विल 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स फॉर ऑप्शन. 1 मार्क के भी 2 क्वेश्चन होते हैं और वहां पर ऑप्शन नहीं होता है. और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या है? 1 ऑप्शन विल बी देयर. आइदर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. And what is that next question? We'll see. Next question is like this. Next question is like this. अगर नहीं ऐसा है तो if the school wants to spend maximum of 27,000 rupees on 300 items, tables and chairs, then find the number of chairs and tables it can rent. अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ ने ट्विस्ट कर दिया. थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया. क्या ट्विस्ट किया? टोटल नंबर ऑफ क्या होगा? टेबल और चेयर जो है हम कितना लेंगे? नहीं, टोटल क्या बोलते हैं उसको? इफ द स्कूल वांट टू स्पेंड मैक्सिमम कितना स्पेंड करना चाहता है स्कूल? 27,000. और आइटम कितना चाहिए उनको? टेबल और चेयर जो है वो उतना ही रहेंगे. यानी क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहेगा. टेबल प्लस चेयर कितने होने चाहिए? टेबल प्लस चेयर कितने रहेंगे? उतने ही है.
मुझे 300 ही चाहिए, मगर मेरा बजट 30,000 नहीं है। अब मैं बजट कितना दे रहा हूं मैं? 27,000। पहली बार बजट कितना था? 30,000। तो इसको अभी मैं क्या करूंगा, यानी एक टेबल का कितना, एक चेयर का कितना था रेंट? व्हाट वाज द रेंट ऑफ वन टेबल? वन चेयर कितना था? 50 रुपीज का एक टेबल, एक चेयर है। तो 50 इंटू एक्स प्लस व्हाट इज द रेंट ऑफ टेबल? 200 रुपए का टेबल है, मगर हमारा बजट कितना है इस बार? हमारा बजट क्या हो गया? 27,000 हो गया। तो अब बजट हमारा 3,000 से कम हो गया, तो क्या होगा? तो व्हाट इज कॉमन अगेन हियर? व्हाट इज कॉमन हियर? 50 कॉमन है, तो x प्लस हाउ मच? 4y इज इक्वल टू हाउ मच? 27,000। तो 0 cancels with 0, right? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, carry to 5 4 जा 20, 0। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 540। इक्वेशन यहां पर क्या हो गया? इक्वेशन यहां पर क्या हो गया? चेंज हो गया, बिकॉज बजट हमारा चेंज हो गया। बजट अर्लियर इट वाज 30,000, नाउ इट इज हाउ मच? 27,000। तो अगेन वी हैव टू सॉल्व। अगर हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4y इज इक्वल टू हाउ मच? 540। ये प्लस की जगह पे माइनस, और ये प्लस की जगह पे, तो ये कैंसिल होगा, तो कितना होगा? -3y इज इक्वल टू हाउ मच? -3y इज इक्वल टू हाउ मच? इज इट 240? 540 माइनस 300 कितना होगा? 240 होगा। तो अगेन, तो y इज इक्वल टू -240 डिवाइडेड बाय -3, तो कितना होगा? 80। तो ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? 80 नंबर ऑफ टेबल्स। अब नंबर ऑफ चेयर्स अगर आपको चाहिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 है, तो x प्लस 80 इज इक्वल टू हाउ मच? तो x इज इक्वल टू हाउ मच? 300 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? कितना? 220। इज इट राइट? तो चेयर्स कितने हो गए? चेयर्स कितने हो गए? 220। और टेबल कितने हो गए बच्चों? पिछली बार कितना था टेबल? पिछली बार टेबल कितना था? 100 था, और चेयर कितना था? 200 था। अब क्या हो गया? चेयर की संख्या बढ़ गई, टेबल की संख्या क्या हो गई? घट गई। ओके, तो देखिए, दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये आपको डे टू डे लाइफ में काम आता है, नॉट ओनली फॉर व्हाट इज इट स्कूल प्रोग्राम, बट ऑल्सो घर में भी अगर मैनेज करना है, तो घर में भी कुछ फंक्शन अगर है, तो आप अपना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल उसके अंदर लेके जा सकते हो। यू कैन फाइंड इट आउट कितने लोग आने वाले हैं, यू कैन ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम, कितने लोग एक्सपेक्टेड है। तो ठीक है, हमको 500 चाहिए, 500 तो 500 के कितने टेबल होंगे, कितने चेयर होंगे, खाना किसी को बुला रहे हो, कोई फंक्शन है घर पे, खाने पे बुला रहे हो, तो ये इसकी जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है? अरे पैसा तो नहीं है मेरे पास, इतना कम हो गया, मैं तो पहले 50 सोच रहा था, 40 चाहिए मेरे को, तो बजट तुम्हारा कम हो गया। तो ये बिल्कुल मतलब आपके डे टू डे लाइफ सिचुएशन को पकड़ के चलने वाला टॉपिक है, and we are using it as a competency based question, right? You understand? Okay. What is the maximum number of tables can be rented with chairs if no chairs are rented? If no chairs are rented, हमको चेयर लेना ही नहीं है, हमको क्या करना है? हमको चेयर ही नहीं लेना। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखो, नो चेयर्स आर रेंटेड मींस क्या हो गया बच्चों? 50 चेयर्स एंड व्हाट? 200 टेबल्स के लिए। दैट मींस व्हाट? 50 चेयर्स का 50x प्लस 200 टेबल्स का 200y इज इक्वल टू कितना था हमारे पास? कितना था हमारे पास? 30,000 था, राइट? तो अगर हमारा x 0 है, चेयर्स अगर हम 0 ले रहे हैं, तो 200 इंटू y इज इक्वल टू व्हाट? 30,000, सही है ना? तो y इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय
200 तो कितना होगा बच्चों? हाँ, व्हाट इज इट? 150 टेबल्स लेना पड़ेगा। इज इट राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? राइट है ना? 150 टेबल हम ले सकते हैं और इस 150 टेबल का रेंट कितना होगा? 150 सही है, 150 टेबल हम ले सकते हैं और इस 150 टेबल एक का रेंट कितना है? 200 रुपए है। तो 200 इंटू 150 करोगे तो विल कम बैक टू 30,000। 30,000 रुपए हमारे खर्च होगा, राइट? 30,000